स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र एंजॉय यादों की दास्तां के नेक्स्ट एपिसोड में। डे 9 को बोट सफारी के बाद केरला के पश्चिम घाटों की गहराइयों में बसा घने जंगल और समृद्ध डाइवर्सिटी से घिरा टेकड़ी, जिसे प्रकृति के अनमोल खजाने स्पाइसेस और हनी का घर भी माना जाता है, को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। इस रीजन का क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और रिच सॉइल दुनिया के बेहतरीन मसालों इलायची, काली मिर्च, लौंग, जायफल आदि के लिए एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर तैयार करता है। यहाँ की हवाओं में भी बगानों से उठती इलायची की खुशबू घुली रहती है। टेकड़ी के इन्हीं खजानों को एक्सप्लोर करते हुए हमारी मुलाकात वहाँ के एक लोकल होलसेलर ट्रेडर से हुई, जिनका अपना खुद का कार्डेमम प्रोसेसिंग प्लांट है। उनसे हमें मसालों की क्वालिटी, प्रोसेसिंग टेक्निक, ऑथेंटिसिटी के से जुड़ी काफी दिलचस्प और काम वाली जानकारी। Don't use any size we can use, but the bigger size, the seeds percentage is high on the bigger sizes. Okay. Okay. So the little bit of quality is good for big size. Okay. Now what we do, we will collect directly from the farmers, and here we put the mixed material. Okay. After the mixture grading, after we here the sorting is happening. Means open mouth, there are so many dots like this whole rejection. The mission unit also, but mission is not accurate. Actually we do export, so hand pick is good. The cost wise, cost is little high compared to the mission, but we will get the pure quality. Okay. This is the clean the material. This is 8 mm plus size. Okay, the best one. Best one. Okay. And seeds will be black in color. Dana pura black. Light brownish, but it's not fully matured. 80% matured. This one is pura matured. Okay. Okay. And the white one inside, some spots will come white. This is also matured. But it's not matured, the seeds will be white in color. Okay. Just taste it. So how we distinguish the quality between the 8 mm, 7 mm and 5 mm Size. apart from the size? Size. Apart from the size. Size is the main thing. And the another one is liter weight. Okay. Means grams per liter. We Okay. will fill this elaichi in a liter. You know that we will buy the milk. So that liter, we will fill in that liter. The grams More the will be weight, better the quality. more than 400 grams. So More than 400 is better quality. Means the inside the seeds will be high. The percentage of seeds is high. Okay. That means suppose we fill the 1 liter of milk jar. Yeah. And then we weight it. Yeah. So if the weight is 400 plus, then it's good quality. Good quality. If 400 the less, down, the seeds will be immature. white, not Okay. mature. Not immature. mature. स्पाइसेस के बाद अब बारी फॉरेस्ट हनी की थी, जो स्वाद में ही नहीं बल्कि हेल्थ बेनिफिट के मामले में भी काफ़ी रिच माना जाता है। यहाँ का शहद ज़्यादातर वाइल्ड फ्लावर, मेडिसिनल हर्ब और फॉरेस्ट प्लांट के फ्लावर के नेक्टर से तैयार होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी बाकी जगह के शहद से काफ़ी अलग होती है। मोनोफ्लोरा हनी होने की वजह से इसमें फ्रक्टोज नेचुरली ज़्यादा होता है, जिससे इसका जीआई कम होता है। साथ ही नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स के साथ साथ जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाने की वजह से ये डाइजेशन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए भी लाभदायक होता है। इस तरह के फॉरेस्ट हनी की पहचान इसका गाढ़ापन, तेज और ताजे फूलों की खुशबू से होता है। ठंडे मौसम में इसका क्रिस्टलाइज होना भी एक तरह की प्योरिटी का नेचुरल संकेत माना जाता है। ये सारी जानकारी हमें तब मिली जब हम टेकड़ी के फेमस फिलिप हनी बी फार्म पहुंचे, जहां हमें बी फार्मिंग और डिफरेंट टाइप की हनी के बारे में और डिटेल में बताया गया। Here two type of bees are there. Okay. This is stingless type. Sorry, you don't bother about the recording. No problem. Okay. No problem. Okay. This is stingless type. Okay. They mainly collect the honey from the olive flower, herbal flowers only. Okay. And this is the bigger one. Bigger have two type of there. Multiflora, uniflora. Okay. Multiflora mainly collected from the forest areas, and the uniflora mainly collected from the rubber plantation, coconut plantation. Okay. Three type of bees are there. One queen and 10% of males, 90% female. Queen is a mother. She makes 200 to 500 eggs lays.
plays every day. And the female make the honeycomb, collect the nectar and pollen, all the work done by the females. Okay. And we get 25 to 40 kilo honey. We get 1 year from one boxes. 20 to 40 kg. Yes. Okay. One from And one box. One box. really collecting honey from the January to April. We are harvesting the honey. Okay. Here the queen and the male is there. Queen is 200 to 500 eggs lays every day. Okay. And males are lazy. They only have reproduction and the protection to the queen only have. And females are making the honeycomb, collect the nectar and pollen. All the work done by the female. When the bee is closed time, don't wait. Just calmly stand. There is no problem. Okay. So it's all are the harmless. And when the bee sting, it's good for the health. It prevents the cancer. It's increase immunity. Okay. All are the females. Okay. Inside the round, it's a yellow color is the honey. After putting the honey, they're making a sealing also there. And this comb-like structure they make Yes, themselves? we made only the frame. Huh. They make the white color. Okay, This is okay. the larva of the bees. Okay. They can make within 50 days. They can make the honeycomb. Oh, wow. Yes, you can hold, ma'am. Yes, tightly hold. Tightly. Yes. Yes. You can take pictures, sir. They collect. They can be fly 5 miles every day. After they come back to their mother. Mother is queen is there, so they does not going anywhere. Like a human bees also. Also, ma'am also can do. I will take the picture. It's recording. Waving the hand and it's create a pain. Frightened. That time only they bite. Otherwise they does not bite. Okay. So can we saw this mother bee as well? No, because only females are biting. Males does not bite. Okay. When we take in the queen outside, all the females come to bite because we are attacking their mother. So more chance. You can also see this is a half 1 kg of their honey. When we holding the honeycomb only half kg is there, but this is full of honey is there. 1 kg, around 1 kg is there. So how many? There's a 2 boxes are there. These 2 boxes is a honeycomb, and here the newborn babies and queen is there. Okay, Males okay. also. So you always extract the honey from these 2 boxes. Yes, yes. Okay. And then cover the last one whenever we you do did it. not take into last 3 finger because mother every day she make eggs, 200 to 500 eggs every day. Okay. So we does not disturb the queen. So there is a lot of varieties in the honeys, na? So what kind of variety of this honey? This is multiflora. It's multiflora. Only 2 type of there, multiflora, uniflora. Okay. This is a multiflora type of bigger piece. And Okay. also one type is stingless type. Okay. That's a expensive honey. Okay. Okay. And in terms of the bees also are different kind of bees, or there's only a specific variety of bees in India? This is Indian type of bees. Okay. And also one type is Egypt type. bee. Okay. That's a big size. Okay. And that's only in Arabian side. Okay. This is the Indian one. Indian type. Oh, okay. And it's total how many boxes are there? Here 500 boxes are. 500 boxes. And this is a red banana. It's a protection from the sun. ये सब एक्सप्लोर करते करते शाम के 5 बज चुके थे और इस नॉलेज पैक्ड यादगार दिन को समेटे हुए हम वापस रिसोर्ट की ओर रवाना हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में 5 किलोमीटर के शॉर्ट रन के लिए जंगल की सुनसान सड़कों पे निकल गया। वापस आके थोड़ा रेस्ट और फ्रेश होने के बाद हमने अपनी पैकिंग खत्म की और अब हम इधर से निकलने के लिए तैयार थे। टेकड़ी हमारे इस रोड ट्रिप के फर्स्ट लेग का आखिरी डेस्टिनेशन था। तो चलिए अब तक के इस पूरे सफ़र के हाइलाइट्स, एक्सपीरियंस और एक्सपेंसेस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब तक 9 दिन में हमने 3 राज्य, 7 शहर और 9 डेस्टिनेशन को कवर करते हुए करीब 1231 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली थी। इस पूरे सफ़र में हमारी हमसफ़र रही हुंडई क्रेटा एसएक्स पेट्रोल ऑटोमेटिक
जिसने मिक्स टेरेन में हमें अप्रॉक्सीमेट 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया था। ये फर्स्ट लेग सीनिक ड्राइव्स, पीसफुल बीचेस, मिस्टी हिल स्टेशंस, जंगल एक्सपीरियंस से भरपूर रहा, जो इस रोड ट्रिप का एक यादगार चैप्टर बन गया। इस फर्स्ट लेग में बेस्ट ड्राइव चिरई बीच से टेकड़ी बीच तक का रूट, बेस्ट स्टे क्लब महिंद्रा मेडिकेरी और परियार हाउस, बेस्ट डेस्टिनेशन हमारा मेडिकेरी कुर्ग परियार टेकड़ी था, बेस्ट बीच हमें पाडुबिद्री का मिला और बेस्ट रेस्टोरेंट हमें चिल आउट कैफे मिला था। चलिए अब हम थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जहाँ तक रोड और रूट की बात करें तो NH66 से कुछ सेक्शंस पे चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से ओकेजनल डाइवर्जन मिला। कुल मिलाकर ये लेग हाईवे, कोस्टल रोड और वेस्टर्न घाट का एक बेहतरीन मिक्सचर था, जहाँ ड्राइव खुद डेस्टिनेशन जितनी यादगार बन गई। अगर स्टे एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जर्नी के दौरान हमने 3 स्टे पहले से बुक किए थे, जो लोकेशन और फैसिलिटी के हिसाब से 5 स्टार एक्सपीरियंस वाले थे। ऑन गो बुकिंग के लिए हमने 4 स्टे किए, जिसमें से 3 स्टे काफ़ी साफ सुथरे और कंफर्टेबल थे। हालांकि गोकर्णा का स्टे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा, लेकिन बाकी सभी स्टे वैल्यू फॉर मनी थे। चलिए अब फूड और रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। वेजिटेरियन होने की वजह से हमें केरला में थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस मिले, लेकिन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स और लोकल फूड का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा। चिरई बीच का चिल आउट कैफ़े का हमारा एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन था। अगर नेविगेशन और कनेक्टिविटी की बात करें तो शुरुआत में गूगल मैप का हमने इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ ग्लिचेस के बाद हमने फिर मैप माई इंडिया पर स्विच कर लिया, जो कि हमारा निर्णय सही साबित हुआ। जंगल और घाटों के सेक्शंस में नेटवर्क न होने की वजह से ऑफलाइन मैप काफ़ी काम आया था। फर्स्ट लेग में हुए एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो अभी तक हमने फ्यूल में करीब 7,314 रुपये खर्च किए थे। स्टे जो हमने ऑन गो बुक किया था उसमें लगभग 11,500 के आसपास खर्च किया था। 2 टाइम के फूड पे 2 पर्सन के ऊपर हमने करीब 10,000 के आसपास खर्च किया था। सफारी और स्पाइस गार्डन और बाकी सब चीज़ पे हमने करीब 4,500 के आसपास खर्च किया था। पार्किंग और टिकट एंट्री के ऊपर अप्रॉक्सीमेट हमने 150 रुपये खर्च किया था। और टोल की अगर बात करते हैं तो टोल के लिए हमने एनुअल पास ले लिया था, और हमारा ये पूरा ट्रिप मैक्सिमम नेशनल हाईवे पे था, तो हमारा सारा टोल हमारे एनुअल पास से ही कटा था। चलिए अब रोड ट्रिप की कुछ टिप्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जिससे हमें इस सफ़र में काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमने सुबह जल्दी स्टार्ट करने का प्लान किया था, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक काफ़ी कम मिला और हम टाइम से ही दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे। फ्यूल के लिए हमने फ्यूल रेशनिंग की थी। जिस राज्यों में या स्टेट्स में फ्यूल के रेट कम थे वहाँ पे हमने टैंक फुल कराया था, और जहाँ पे रेट्स ज़्यादा थे वहाँ पे हमने लिमिटेड ही फ्यूल फिल कराया था, जिससे हमें हमारे फ्यूल कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ा था। घाट सेक्शन पे हमने ऑन टाइम फ्यूलिंग की थी, ताकि हमारे घाट में या बीच में कहीं पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। हमने अपनी इस जर्नी में अपने 50 to 60% स्टे को ऑन गो बुक किया था, ताकि हम अपने आगे की जर्नी और आगे के स्टे को अपने हिसाब से प्लान कर सकें और जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। इस तरह के लॉन्ग रोड ट्रिप पे नेविगेशन और नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुरू में हमने गूगल मैप यूज़ किया था, बट बाद में कुछ ग्लिचेस की वजह से हमने मैप माई इंडिया पे स्विच किया। साथ ही हमने कुछ ऑफलोड मैप्स भी डाउनलोड कर रखे थे, जिससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। सिंस हमारी ये रोड ट्रिप मैक्सिमम नेशनल हाईवे पे होने वाली थी, इसलिए हमने टोल के लिए एनुअल टोल पास लिया था, जिसके लिए हमें 3,000 पे करना पड़ा था, और ये हमारे लिए काफ़ी वर्थ रहा। कुल मिलाकर ये फर्स्ट लेग बजट फ्रेंडली, वेल प्लान्ड और बेहद मेमोरेबल साबित हुआ, और आगे का सफ़र और भी एक्साइटिंग होने वाला था। इस सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सफ़र पर विथ लॉट्स ऑफ जॉय। हमारे यानी अनिल और सरिता के साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।
ये है सपनों का सफर और हर सफर में बहुत सा जॉय। अगर आपको हमारा सफर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारा नया सफर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।